శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
అందరూ సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాజ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रिदं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः. श्रुति स्मृति नदी पूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद
अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ कल्याणमण्डपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు మీ భార్య పేరుని మీ పిల్లల పేరుని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ కోరికలను ప్రార్థనలో మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थं श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం ஆஜானுபாகும் அரவிந்த தளாயதாட்சம் ராமம் பஜே விநாசகரம் நமாமி என்று அந்த ராமபிரானை செவிக்கிறோம். ஏனென்றால் தை மாதம் திங்கள் கிழமை புனர்வசு நட்சத்திரம் திரையோதசியுடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவிக்க உள்ளோம். இன்று ராமபிரானுடைய புனர்வசு நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு மாதமும் வருகிறது. ஆனால் அவர் சித்திரை மாதம்தான் அவதரித்தார். ஆனால் இன்று அவரை நினைத்து கொண்டு இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை சேவிப்போம். அதை தொடர்ந்து நாம் அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. இதோ எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு அவருடைய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை செவிக்கலாம்.
ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த ராமபிரானை செவிப்போம். விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்தை செவிக்கலாம். மந்திரங்களுடன் ஆரம்பமாகிறது. திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானை செவித்து கொண்டு கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்கலாம். இங்கே விஸ்வக்சேனர் என்பது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே சேனா முதலி எனப்படுவர். அந்த சேனா முதலிக்குத்தான் முதலில் ஆராதனை, அர்ச்சனை, கைங்கரியம். அப்படி அந்த சேனா முதலிக்கு முதலில் கைங்கரியம் சுக்லாம் வரதரம் விஷ்ணும் சதுவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாஜேத் சர்வ விக்னோபசாந்தஜேத் ததேவ லக்னம் சுதனம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வ பலம் ததேவ லக்ஷ்மீபதே தேங்கிருகம் ஸ்மராமி. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரः தத்ர ஸ்ரீ விருஜோர்பூதி த்ருவாணி திருமதிர்மம ஸ்மிருதே சகல கல்யாண பாதனம் யத்ர ஜாயதே புருஷத்தமதன் நித்யம் பிரஜாமி சரணம் ஹரிம். லாபஸ்தேஷாந்தகஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவः ஏஷாம் இந்தே உர்தஸ்யாமோர்தகஸ்தோ ஜனார்தனः ஆபதாம்பஹர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் போஜோ போஜோ நமாம்யஹம் பிராணாநாஜம்யா. ஓம் பூः अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजनवृट्टायामस्यां सुपतिदौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे वृषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासत्वामिनः वैवागोचकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये. आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये. ततः कलशाराधनं करिष्ये. दारादुदप्तत्वमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अवोमिकुण्डं प्रतिपादयिष्ये. ऋणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापच्युवाजुवतमाज्ञान्ताज्ञान्ततमाजुवाजुवतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु तं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशावितदाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर् विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्य. ओं भू वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनम् वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाय नमः. गुडोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु. ओमाग्नेजोजस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वे चदात्मन्महितो न जम्बो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे स्तान्दनिदान् ददातु. ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि. विश्वक्षेणाय नमः. इदमासनम् विश्वक्षेणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्षेणाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. विश्वक्षेणाय नमः. शान्ताय नमः. अराय नमः. अमिताय नमः. विश्वक्षेणाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्षेणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु. भवद्भ्रणुज्ञः सुपुण्याहं करिष्ये. कुरुष्व स्वस्तितो प्रोक्षितमस्तु. अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रयतां प्रजापतिः श्यां यन्तको राणिशां यन्तुमा पानिशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तको राणिशां यन्तुमा पानिशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तको राणिशां यन्तुमा पानिशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामपिः इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदे पदं समो नमस्कपाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्वजस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्त शौर्यः दिवेव दक्षुरादनं तद्विप्रासो विपञ्चवोजा गृवागुं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं
भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गे सुष्ठुवागुं सुस्तनोभिर्व्यसे महितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवायत्राणश्चक्राचरसन्तनूनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मज्जाने ऋषिता युद्गन्तोः अतिथिर्झोरतिरन्तरिक्षं अतिथिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रन्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वित्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्यामस्यां सुमदितो श्री श्रीनिवासत्वाविनः वैवागोत्सकन्वा गुञ्जा स्वस्तिं प्रवन्तो प्रवन्तो क्रमणे स्मृते रुद्धिं प्रवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः याभोजिष्ठामजोपवस्थानवोचेतनाथन महेरणा जतक्षसे योवत्कवदमोरदत्तश्च पादयते नः उषधेरिव मातरः तस्मा अनङ्गमामभोजश्चक्षजा यजन्मद आपो जनयता जनः दिविश्रयस्मान्तरिक्षे तस्मात् पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समदु ब्रह्मवच्च सायत्मा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदासमुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनवोदया पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमुच्चषि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण धवेन च पद्मामानी रज्येति ऋषभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनैः सुतगायकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतो रजः ब्राह्मणेषु मृतकं हित येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रो सदोऽध्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समेत्या यमो राजा प्रपणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिरमानुषेभ्यः वोर्ध्वन्तिगातुपेषितं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तान् रक्तछायां दिशि भाषाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्या बवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरादरैर्नाघेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो आत्मदे प्रजजाने हस्मान् स्वावेशोऽहनमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रददन्नो जुष्स्मात् सन्नयेद्वपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तो औत्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे वजेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखमदास्तानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீராம ஜெய ஜெய ராமா. அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டு நாம் இப்பொழுது திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண வேளையிலே சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த அங்குரார்ப்பண வேளையில் ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு ஹனுமான் ஒரு வானரமாக தெரியவில்லை. அந்த ராமபிரானை சற்று நினைத்து பார்க்கிறேன். ஹனுமானை ஒரு வானரமாக எண்ண வேண்டாம். மரத்திற்கு மரம் தாவும், கிளைக்கு கிளை தாவும் வானரம் போல் நம் மனமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று தாவிக்கொண்டே இருக்கிறது. இதனை கட்டுப்படுத்தினால் எத்தகைய சாதனையையும் சர்வ சாதாரணமாக சாதித்து பெரும் புகழ் ஈட்ட முடியும். அந்த மனித சக்தியின் ஒட்டு மொத்தமான உருவம்தான் ஹனுமன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்படி ஸ்ரீராம அவதாரம் எடுத்தவன்
இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். சிம்சுபா மரத்தின் மீது அமர்ந்த ஹனுமனுக்கு ஒவ்வொரு நாழிகையையும் ஒவ்வொரு வருஷமாக கழிந்ததாம். கோதாவரி நதிக்கரையோரம் ஸ்ரீராமர் உட்கார்ந்திருந்தாராம். அவருக்கு அருகிலே லக்ஷ்மணன் பவ்யமாக ஆனால் சோகத்துடன் இருக்கிறார். ஸ்ரீராமரின் பார்வை கோதாவரி நதியை நோக்கிச் செல்லுகிறது. எங்கோ பெய்த மழையால் கோதாவரி வெள்ளப்பெருக்கிலே கட்டுக்கடங்காமல் கரை புரண்டு ஓடுகிறதே. இதை பார்த்து மகிழ்ச்சியடைய வேண்டிய ராமபிரான் மாறாக இதை காண நம்முடன் சீதை இல்லையே என்று கவலைப்பட்டு நொந்து போனாராம். இதுவரை சீதா பிராட்டியின் இருப்பிடம் தெரியவில்லை. இனி அவள் கிடைப்பாளா? இந்த கரை புரண்டோடும் கோதாவரியில் இறங்கி ஜலசமாதி ஆகிவிட்டாளா என்ற எண்ணம் இருந்தது. என்ன என்று இனி நான் யாருக்காக வாழ வேண்டும் என்று சட்டென்று முடிவெடுத்து கோதாவரியை நோக்கி விறுவிறு என்று நடக்கிறார் ராமபிரான். அருகிலிருந்த லக்ஷ்மணனுக்கு ஸ்ரீராமன் ஏதோ செய்து கொள்ளப் போகிறார் என்று மட்டும் புரிந்தது. தண்ணீரில் இறங்கிய ராமபிரானை கைப்பிடித்து இழுத்து கரை சேர்த்தாராம். ராமருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. லக்ஷ்மணன் தன் ராமரை பார்த்து, அண்ணா, வீரர்களுக்கு அழகு வில்லை தோளில் சுற்றி கொள்வதுதானே. எப்பொழுது வில்லை கீழே படுக்க வைத்து விட்டீர்களோ அது வேறு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் என்றாராம். இப்படி பலவிதமாக தம்பியிடம் சேவைகள் செய்து கொண்டு ராமபிரானுடைய கைங்கரியத்தில் ஹனுமன் பார்த்து செவித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ராமபிரான் ஆகிய வேங்கடவனுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை. ரக்ஷாபந்தன பூஜாந்த கிருஷ்யே சுன்னோனி தத்தாம் தபசோனி தத்தாம் ஸ்வயம் மிருதக்னே மிருதஜே புராஜா ஓம் போ சேஷமாவாஹஜாமி நாகராஜமாவாஹஜாமி காத்திருஷமாவாஹஜாமி அனந்தமாவாஹஜாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாய நமः குலோபஹார நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி சுப்ரீத சுப்ரசன்னோ வராதோ பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினா பகஸ்வஸ்தி தேவ்யதித நர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷாசுரோ ததாதன ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவேஷு சேதுனாம் ஸ்வஸ்தஜே வாஜ்ருபப்ரமாமஹே सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावद्ब्रुवत् स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्त्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तेनन्त्राक्षमरिट्टिनेमिर्महद्बोधं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं शुभगुं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த ராமபிரானை செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். ரக்ஷாபந்தன என்பது ஆதியந்த கடந்த பரம்பொருளாகிய பகவான் உலகத்து உயிர்கள் உய்வு பெறும் பொருட்டு தன் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து இறங்கி இந்த பூ உலகிலுள்ள பல தலங்களில் உருவத் திருமேனிகள் வாயிலாக வழிபடும் அடியார்களுக்கு அருள் பாலித்து அந்த அருள் பாலித்து வருகிறான். பசுவின் உடல் முழுவதும் பால் மறைந்திருந்த பொழுதிலும் மடியின் வழியாகவே வெளிப்படுவதைப் போல நிலத்தடியில் நீர் இருந்த பொழுதிலும் தோண்டிய இடத்தில் தானே நீர் தோன்றுவது போல இறைவன் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருந்தாலும் பெரியோர்களால் அமைக்கப்பட்ட ஆலயங்களில் உள்ள மூர்த்திகளின் மூலமாகவே சிறப்பாக அருள் செய்து நிற்கிறான். இருஞ்சுரபிக்கெங்கும்
உருக்கான ஒண்ணாத பால் முலைப்பால் விம்மி ஒழுகுவது போல் வெளிப்பட்ட அருள்வன் அன்பர்க்கே என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. பரம்பொருளாகிய பகவானுக்கு பரத்துவம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமித்துவம், அர்ச்சை என்று 5 வகை நிலைகள் உண்டு. இவற்றுள் பரத்துவமாவது பரம பதத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் நிலை. வியூகமானது திருப்பார் கடலிலே எழுந்தருளியிருக்கும் நிலை. விபவம் என்பது அவதார மூர்த்திகளாய் அவதரித்த நிலை. அந்தர்யாமித்துவம் என்பது சராசர பொருட்களாகிய இயங்கும் பொருட்கள், இயங்கா பொருட்கள் அனைத்துள்ளும் எள்ளில் எண்ணெய் போலும் மறைந்திருக்கும் நிலை. அப்படி அந்த பகவானை நாம் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். செய்ய பரத்துவமாய், சீரார் வியூகமாய், துய விபவமாய் தோன்றியவற்றுள் எய்துவர்க்கு இந்நிலத்தில் அர்ச்சாவதாரம் எளிதென்றான் பன்னு தமிழ் மாறன் பையின்று என்று திருவாய்மொழியிலே. நீடியமான் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் என்றபடி இந்த அர்ச்சை நிலையில் பெருமாள் நிற்கின்ற திருக்கோலம், அமர்ந்த திருக்கோலம், பள்ளி கொண்ட திருக்கோலம் ஆகிய கோலங்களில் ஆங்காங்கு எழுந்தருளியுள்ளார். அப்படி எழுந்தருளியுள்ள பெருமாளுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை இதோ அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். திருவேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதையே நமோ நமஹ என்று அந்த ராமபிரானை நினைத்து கொண்டு, அங்கே ராமபிரான் இங்கே திருமலை அப்பனாக நமக்கு எழுந்தருளி அருளி செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கரத்திலே ரக்ஷையை அணிவித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானையும் தாயார்களையும் சேவிக்கலாம். நீடியமான் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் என்றபடி அர்ச்சை நிலையில் பெருமாள் நின்ற கோலம், அமர்ந்த திருக்கோலம், பள்ளி கொண்ட திருக்கோலம் ஆகிய கோலங்களில் ஆங்காங்கு எழுந்தருளியுள்ளார் என்பது நமக்கு அப்படி எழுந்தருளியுள்ள பெருமாளுக்கும் தாயார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தனம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மதுரை மாநகரில் தலையாய வைஷ்ணவ தலமாக விளங்கும் இந்த கோவிலிலே எம்பெருமானாகிய திருமால் நின்ற இருந்த கிடந்த திருக்கோலங்களில் எழுந்தருளியுள்ளார். இந்த தலத்தில் ஆவணி திருவோணத்தில் சிறப்பான வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன. அப்படிப்பட்ட மாயோன் மேய ஓண நன்னாள் செய்யும் கூடலழகரான எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி இதோ நாச்சிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். வைஷ்ணவ தலங்களில் பெருமாளை எப்பொழுதும் சிறப்பாக சேவிப்பார்கள். அதுவும் ஏகாதசி, வைகுண்ட ஏகாதசி போன்ற நாட்களில் இன்னும் சிறப்பான ஆராதனை கைங்கரியம் செய்வார்கள். இந்த வேளையில் ராப்பத்து பகல் 10 உற்சவங்கள் கூட விமர்சையாக நடைபெறும். அப்படி சென்ற வாரம்தான் வைகுண்ட ஏகாதசியும் சென்ற ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன், அதன் பிறகு ரத சப்தமி விழாவும் பீஷ்ம ஏகாதசியும், இப்படி வைஷ்ணவ தலங்களிலே மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த அந்த விழாக்களை, அந்த கைங்கரியங்களை நாம் சேவித்தோம். இப்பொழுது இன்று தை மாதம் திங்கள் கிழமை, திரையோதசி திதி, புனர்வசு நட்சத்திரம். இப்படி இந்த திருநாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கலியுகத்திலே நம்மாழ்வார்க்கு முன்பு வைகுண்டத்திற்கு சென்றோர் யாரும் இல்லாததால் வைகுண்ட வாசல் மூடப்பட்டிருந்ததாம். நம்மாழ்வார் முக்தியடைந்த அன்று அது திறக்கப்பட்டது. இதனை அறிந்த நம்மாழ்வார் பெருமாளிடம், எனக்கு மட்டும் வைகுண்ட வாசலை திறந்தால் போதாது, என்னை தொடர்ந்து தங்கள் மீது பக்தி செலுத்தும் அனைத்து பக்தர்களுக்காகவும் வைகுண்ட வாசல் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாராம். அப்படி ஸ்ரீரங்கத்திலே கொண்டாடப்படும் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு ஒரு சரித்திரமே உள்ளது.
திருமங்கை ஆழ்வாரின் பக்தியிலும் திருப்பணியிலும் மகிழ்ச்சியடைந்த ரங்கநாதர் அவர் முன் தோன்றி என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்டாராம். அதற்கு திருமங்கை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார் பரமபதம் அடைந்த அந்த நாளான ஏகாதசியை பெரிய விழாவாக கொண்டாட வேண்டும். நம்மாழ்வாரின் திருவாய் மொழிக்காக திருவிழா நடைபெற அருள வேண்டும் என்று வரம் கேட்டாராம். ரங்கநாதரும் அருளினாராம். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செவிக்கலாம். எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு அவனுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறலாம். அவனுடைய திருவடிகளே சரணம் என்று காத்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கு அருளிச் செய்வான். ஓம் நமோ வைவாகோத்சகன்மாங்கம் ஔபாசனாக்யோ ஆகாரகர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்மிருக்னாலயம் புரோக்ஷ்ய ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருத்தைர்வா வித்வாம்சம் சுத்த ஆஷேர்வா மமக்தோ இந்திரசுத்தோன் ஆக சுத்த मयि देवान्द्रमणमायि जन्तां मयि यासिरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारं च पूर्वेरिट्टास्यामतनुवास्मीराः उद्धण्यमानमस्यामेद्यवात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानश्यन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी तोकशाता पोतह्यतनेन सौम्या कृणुद्वगुं रसनाहोतविगुं तद् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्या जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदोपमनस्करेत् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्तात् विधेमतस्रोचो विन आवह स बुद्धियापमाश्च विष्टास्तयो नमतस्य विवह ओम वो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देनकुं सोमोर्वन्तमाचकुं सोमे वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकुं सवेजं पितुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओम वो सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवताव्रतगित्वन्नाकस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्रोलोक तत्रे मग्नमजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो जग्निजेस्तो वाजबोधेस्तो विष्णो मनसा बोधेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे प्राच्यां विष्णोस्तोपोसे कृतासे घृतासे ध्रुवासे तरुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागच्छ पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्रोलोक तत्रे मग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणज कोपो जनत्वो समो जनत्वो सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपणदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रामावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासरज्ञमावाहयामि यज्ञदेविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि
सोमाजुष्टन्नर्वपामि अग्नेजुष्टन्नर्वपामि सोमाजुष्टन्नर्वपामि अग्नि सोमाभ्यागुष्टन्नर्वपामि प्रजापतिजुष्टन्नर्वपामि वसुभ्योजुष्टन्नर्वपामि मरुभ्योजुष्टन्नर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टन्नर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवेजुष्टन्नर्वपामि बृहस्पतिजुष्टन्नर्वपामि मित्रायजुष्टन्नर्वपामि वरुणायजुष्टन्नर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टन्नर्वपामि अश्विभ्योजुष्टन्नर्वपामि पूष्णेजुष्टन्नर्वपामि कक्षायजुष्टन्नर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टन्नर्वपामि औपासनज्ञाजुष्टन्नर्वपामि यज्ञदेविष्णेभ्यो देवेभ्यो जुष्टन्नर्वपामि सर्वदेवेभ्योजुष्टन्नर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधसि स्वाहा अमृतृणमसि मा ऋणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चिक्पति स्मा पुरात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्मा पुरात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मा पुरात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलशं पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आध्या चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोचसे नमः अजराप्रवे नमः विजर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः आदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ब्रह्मन् सोमुद्गमादास्वादस्वा समेत जस्वाहा आगार मुहूर्तत्सु मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशान अन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेविष्णेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यो स्वाहा चरुन् सावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः प्राणानायं जामस्यां सुपतिदोष्णे श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकन्मागम् औपासनाख्यौ मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यविलासे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनात्र स्रोतोच प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्ष्येति तेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसव वं मतो देवावन्तनो यतो विष्टुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्टुर्विचक्रमे त्रेधानतदे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्कतयतो व्रतानि विस्पसे इन्द्रस्वजस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्तु शौर्यः दिवि वचक्षुरादग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभोजा कृमागुं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా
అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. विघ्नो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यात् परिमितशक्त्या प्रयमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्राकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावृणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्ताश्च दिग्गजो प्रप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे महानालायमानस्य फणिराजश्चेतस्य सहस्रवणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम अष्टदिग्दण्डशुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोवते संयमरक्षोवते सिन्धुमते
गंधवत्यलकावते दशोवते त्वट्टदेवपुरे विराजिते इंद्राग्नियमनुर्जवरुणवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलहिते रवणेक्षुरासर्पिर्ददिक्षरसिद्धोदकाख्य सप्तार्ण परिवृते जम्बो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मणिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयमदृक्षदिन्द्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरेरावृतभद्राश्वकेतुमाला हिरण्यकरमणकुकुरवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये वरदवर्षे वरदखण्डे महासरोरुहाकार पंचाशत्कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारुण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवताः सन्निधौ सकलजगत्त्रष्टुः प्रार्थयद्विमनो ब्रह्मणोद्विते प्रार्थे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीयाजामे एहजन्मनिजा एदक्षरपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापादकादि समस्त दुर्दक्षयार्धं तत्पूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोहितदामाद्युपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तेस्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भृगुमरीचत्रस्य पादभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः प्रवासदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकर्रासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्यो नौप्नुवा और्वैदुल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पाधारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनीं कास्यमावत्सारणे ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पाधारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। कन्यां गणकसम्पन्नां गणकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत्
कन्यात् फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानुगण्पोत् मुहूर्तोच्युत भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராமா என்று செவித்துக்கொண்டு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரா மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மற்றும் மஞ்சள் குங்குமம் விட்டு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே கோவர்தனகிரியை தாங்கிய கிருஷ்ணரை இவ்விதமாக நினைத்து பார்க்கிறேன். ஆயர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை இவனே நம் குலக்கொழுந்து என்றும் இவன் கட்டளைப்படி நடக்க வேண்டும் என்றும் இருந்தனராம். சரத்காலம் வந்தது. இடையர்கள் ஆண்டுதோறும் தேவேந்திரனுக்கு வண்டி வண்டியாக சோறும் தயிரும் காய்கறிகளும் படைத்து பூஜிப்பது வழக்கம். கிருஷ்ணன் சாமர்த்தியமாக பேசினான். நாமும் நம் பசுக்களும் எதனால் ஜீவிக்கிறோமோ அதற்கே பூஜை செய்வது தகுதியாகும். இந்த கோவர்தன மலையன்றோ பசுக்களுக்கு புல்லும் தண்ணீரும் கொடுத்து காப்பாற்றுகிறது. இந்திரனால் நமக்கு என்ன பயனுண்டு? ஆகையால் இந்த கோவர்தன மலைக்கே இந்த பூசணையை இடுங்கள் என்று கூற அவர்களும் அப்படியே செய்தனராம். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தேவதா ரூபம் கொண்டு அவற்றை முற்றும் தின்று தீர்த்தான். இதனால் கோபமடைந்த இந்திரன் இடையர்களுக்கு தீங்கு இழைக்க எண்ணி 7 நாட்கள் இடைவிடாமல் கல்மழையை பொய்விக்க கண்ணபிரான் கோவர்தன மலையை தன் சுண்டு விரலால் குடையாய் பிடித்து ஆவினங்களையும் கோவலர்களையும் காப்பாற்றினான். தன் முயற்சி பலிக்காததால் தேவேந்திரன் வெட்கம் கொண்டு நின்று குடை குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி என்று ஆண்டாளால் வழுத்தப்படும் குணக்கொண்டல் இந்திரனை ஏதும் தலியாமல் விடுத்தான். அந்த கண்ணனே திருவல்லிக்கேணியிலே நிற்கிறான் என்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார். அப்படிப்பட்ட பார்த்த சாரதியின் மூல அவதாரமான எம்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்ய பூஜையை சேவிப்போம். ராமபிரான் ராவண வதம் செய்து முடித்து சீதா லக்ஷ்மணர்களுடன் மீண்டும் அயோத்தி திரும்புகையில் பிரயாகையில் பரத்வாஜ முனிவரது விருப்பத்தின்படி அவர் ஆசிரமத்திலே வானர சேனைகளுடன் விருந்துண்ண சம்மதித்தாராம். பரத்வாஜ முனிவர் தன்னுடைய தவப்பெருமையால் அங்கிருப்பவர்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் வேண்டிய உணவினை தெய்வீகமாக வருவித்து வெகு சம்பிரதாயமாக உணவு செய்விக்க எம்பெருமான் அதை ஏற்றுக்கொண்டாராம். முனிவரின் ஆசிரமத்தை நெருங்கிய உடனே ராமபிரான் ஹனுமானை பரதனிடம் தான் வந்து கொண்டிருக்கும் செய்தியை கூறச் சொல்லி அவன் கருத்தையும் உணர்ந்து வருமாறு தூது அனுப்பியிருந்தாராம். ஆசிரமத்திலே ராமபிரானும் அவனை சார்ந்தவர்களும் தமக்கென பரிமாறிய வாழை இலையில் உண்ணப் புகுந்த அளவில் ஹனுமன் பரதரிடம் செய்தி கூறிவிட்டு மீண்டும் வந்தானாம். ராமபிரான் ஹனுமானுக்காக தனியே ஓர் இலையை முனிவர் வருவிக்க வேண்டாதபடி ஹனுமனை தனது எதிரிலே அமர்த்தி தனது இலையிலேயே ஒரு பகுதியில் உண்ணும்படி நியமித்தாராம். ஹனுமனின் திறன் அறிந்தவர் என்றோ எம்பெருமான். ஓதமா கடலை கடந்தேறி உயர்மா கடிகாவை இருத்து காதல் மக்களும் சுற்றமும் கொன்று கடி இலங்கை மலங்க எடுத்து தூது வந்தவனன்றோ. திருஷ்டா சீதா கண்டேன் சீதையை என்னும் வீரவிக்கும் வார்த்தை சொல்லி வந்தவன் அன்றோ. பிரீத்தியாலேயே தத்துல்யம் சகபோஜனம் என்று திருவுள்ளம் பற்றி கோதில் வாய்மையினோடு உடனேயே உன் நண்பான் நான் என்று ஹனுமனுடன் சகபோஜனம் செய்தாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த ராமபிரான் ஆகிய
திருமாலின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராமா என்றும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பக்தா பராதீரனை. ஒரு தலத்திலே சென்னகேசவ பெருமாளை பற்றி சில விஷயங்களை கூற விரும்புகிறேன். சென்னகேசவ பெருமாள் கோவில் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது சிலைகளை வடிவமைக்க ஜெங்கணாச்சாரி என்பவர் மிகவும் அழகாக சிலை வடிப்பதில் வல்லவர் என்று நியமித்தனர். இவர் சிலைகள் வடிவமைப்பதில் இருந்ததால் தனக்கு ஒரு மகன் பிறந்ததை கூட தெரியாமல் இருந்தாராம். அந்த மகனும் தகப்பனாரைப் போலவே சிலை வடிப்பதில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்று அதே கோவிலுக்கு வந்து சிலைகள் செதுக்கிக் கொண்டிருந்தானாம். தகப்பனார் வடிவமைத்த சிலையின் உள் தேரை இருப்பதாக கூறினான் மகன். இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் யார் என்று தெரியாமல் இருந்தனர். அப்படி உள் தேரை அதாவது தவளை இருந்ததால் தனது வலது கையை வெட்டி கொள்வேன் என்று ஜெங்கணாச்சாரி கூறினாராம். சரி, சிலைக்கு முழுதும் சந்தனம் பூசப்பட்டது. பெருமாளின் தொப்புள் அருகில் வந்ததும் அங்கு சந்தனம் காயாமல் அப்படியே இருந்ததாம். அப்பொழுது அந்த பகுதியை உடைத்து பார்த்தால் தேரை உள்ளிருந்து வெளியே குதித்ததாம். உடனே நீரும் வழிந்ததாம். ஜெங்கணாச்சாரி தன் தவற்றை உணர்ந்து வலது கையை வெட்டி கொண்டதாகவும் குற்றம் சுமத்தியது தன் மகனே என்று தெரிந்து கொண்டு அகமகிழ்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அவரது சொந்த ஊரிலேயே சென்னகேசவ பெருமாளுக்கு ஆலயம் எழுப்பி மீண்டும் கைகளை பெற்றாராம் ஜெங்கணாச்சாரி. அப்படி அந்த கோவிலின் முன்மண்டபத்திலே இடதுபுறம் உள்ள திண்ணையில் ஒரு கண்ணாடி அறையில் 4 அடி நீளம் 2 அடி உயரத்திலே தோலால் செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு ஜோடி பாதுகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பெருமாள் சில பக்தர்களின் கனவிலே தோன்றி தன்னுடைய செருப்பு தேய்ந்து விட்டது, வேறு பாதுகைகளை தைத்து கொடுக்குமாறு கேட்பாராம். பொதுவான ஒரு இடத்திலே குங்குமம் பரப்பி அதில் பெருமாள் பதித்து விடப்பட்ட அளவில் பாதுகைகள் தயாரிக்கப்படுமாம். அந்த பாதுகைகள் தயாரித்து 50 வருடங்கள் ஆகிவிட்டதாகவும் மீண்டும் பெருமாள் கனவில் வந்து வேறு செருப்புகள் கேட்கும் வரையிலும் அவை அங்கேயே இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இவ்வாறெல்லாம் மாயைகள் செய்பவன் प्रजापतिस्सोमगुं राजानमुसृजतां पन्द्रजो वेद अन्वसृज्यन्तां पाणहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिस्सोमगुं राजानमुसृजतां पन्द्रजो वेद अन्वसृज्यन्तां तानहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीव शरदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रदिष्टितमस्तु
शुभगुं शुभ దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని, పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని, రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు, అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. ब्रह्मणो वन्दमानसजास्तेजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरभोज्यगुंसमानाय प्रमोषे स्वाहा. त्वन्नो अग्नेवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजाति ज्येष्ठाः, यदिष्टो वह्नितमसोऽसु चाणोष्मान् द्वेषागुंसे प्रमद्यस्म स्वाहा. सत्वन्नो अग्नेवमोपबोधेनेदिष्टो यस्यामसोऽब्जष्टो अवजक्ष्मनो प्रेमणिकं सुभजो न येजु स्वाहा. त्वमग्ने अजासन् यजासन् गिदः अजासन् हव्यमोष जानो देहि भेषतग्गु स्वाहा. शतं जस्वाहा चित्तस्य स्वाहा. आकूतं जस्वाकूतिश्च स्वाहा. विज्ञानं जस्वा विज्ञातं जस्वाहा. मनस्जस्वा चक्रे जस्वाहा. पूर्णवादत्तस्वाहा. ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा शुभ स्वाहा. ओं भूर्भुवत्सुभ स्वाहा. अदितेन्व मग्गुस्तानमदेन्व मग्गुस्ताः सरस्वतेन्व मग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः प्रणानायं जामस्यां सुपतिदो. श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गम् औपासनाख्यो लाजुहोमं करिष्येति तेन मन्यस्व. हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुवा इमान् लाजानमित्यभिकार्य. इमां लाजानावपामि समृद्धगणनान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुवण्यतां यन्नाद्रुवब्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे भद्रे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमण्यतां यन्नाद्रुवब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे भद्रे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा.
इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुपप्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानाम्यामस्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमोपासनाख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवट्टं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदप्रसुभावो मतो देवावन्तनो यतो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढवस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि भस्कतेधो व्रतानि भस्पते इन्द्रस्वजुज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पुष्कन्तशौर्यः दिवे विदक्षिणातदग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजा कृपागुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा भुवस्वाहा सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानाम्याम् अस्यां सुमतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो उपरिट्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदप्रसुभा यदस्य कर्मणोत्परेरितं चित्वान्यो न महाकरम् अग्निस्तु सुटुकुट्विद्वान् सर्वज्ञसुखदं करोतु स्वाहा अग्नये सुटवृदा उदयनां कामानागुं समुद्रैत्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्माभूतग्निस्तत्पुनरागः जातवेदावच्चर्षिणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे श्रमाहिमां चक्षरादच्चमक्ष स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषणनिष्टेभ्य स्वाहा भेषरत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ये दोष्येत सेमहि स्वाहा समिदशे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य देह मृत्योर्मोवाय स्वाहा सोमस्य देहमृत्युं मे वाय स्वाहा वाजोर्देमहे प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मणो देमहे बुद्धिं मे वाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तनिप्पा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्मा जन्त सप्तजोने आत्मनस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा जोर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा अग्निर्झेन्नं वेदैर्झेन्नं जोर्झेन्नं पृथ्वीझेन्नं वोषणमसप्तरचैवचैर्नग् स्वाहा ऋतदान विद्मा अनुड्डुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राजजुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो जोसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः आवागदेवताभ्यो नमः यदासुविदास्तानं प्रतिष्ठापयाम क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च स्वाहा सर्वमोज स्वाहा अक्षतमक्षतेजहोमि अक्षतुमामे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजां उदराजां उदीचां उद्भाजां उदराजामार्चयन्तां पश्चिमतः परदिमपनजा सर्वान् परिसमोच्य ग्रन्थिं विसृज्याभिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषितजो मरुतां वृषस्पतनो नो मृष्टमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं
भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजुषं यद्धेवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सुताज सुतन्द्रवट्टशे त्रयाजुषम् आभोजुट्टामजोपस्थानवोर्जे दधातन महेरणाज चक्षुषे योवस्य वदमोरधस्तस्य पादयते नः उषधेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षजा यजन्वध आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात्कृतं मया देव परिपूर्णस्वतच्च वै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्माण्यवान् वै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णा स्मरणं मदङ्गायेन वाचा मनसेन्द्रियं बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्कं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदास्तानप्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சன் விடுதலை செவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது அந்த ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறிக்கொண்டு அந்த தேங்காய்களை உருட்டும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டும் படலம். இதுவே வாரணமாயிரம். அவள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருக்கும் வட்டபத்திர சாயனுடைய கரத்தினை பிடிப்பதற்காக காத்தியாயினி விரதத்தினை நோன்பாக நோற்று இறுதியில் அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறாள். அப்படி ஆண்டாள் வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செய்த பிறகு மாலை மாற்றுதல் மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் இடையே உள்ள அந்த இடைவெளியை சமீபப்படுத்தவும் அவர்களுடைய மனதிலே உள்ள கோரிக்கைகளை வெளிப்படுத்தவும் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த மாலா பரிவர்த்தனம். மாலைகளை பரிவர்த்தனமாக மாற்றுகிறார்கள். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்பட்டு திரும்பவும் கொண்டு செல்லுகிறார் பகவானுடைய தோள்களை அலங்கரிப்பதற்காக. திருவேங்கடமுடையானுக்கு அந்த மாலை அணிவிக்கப்படுகிறது.
வட்டி காசுலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கழுத்திலே இருந்த மாலையானது திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை ஏற்கனவே தொடுத்து தான் சூடி களைந்து பகவானுடைய திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கிறாள். இப்பொழுது அதே மாலையை தான் சூடிக்கொள்கிறாள். திரும்பவும் அந்த மாலையானது மீண்டும் எம்பெருமானுடைய திருக்கழுத்திற்கு செல்லுகிறது. அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பெருமாளுக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வைகுந்த வாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் கூட எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அதை தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம். அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷதையை தூவி மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்து அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். அந்த மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். அந்த திருமலை அப்பனுடைய இறுதி காட்சி கல்யாண காட்சி. தலம்பரால கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. சப்தகிரிவாசா வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
अनाथो दनाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ